Today we are starting with the new chapter, that is redox reaction. Redox reaction. Now first we'll say what, before we go for the actual meaning of redox reaction, we'll see some other meaning here. The first we'll see here classical ideas of oxidation and reduction. Classical ideas of oxidation and reduction. मतलब according to old concept or according to classical concept, what is the meaning of oxidation and what is the meaning of reduction? The first we'll say here, what is oxidation? Oxidation means of what is oxidation first? First I'll write here, oxidation according to classical concept. Oxidation refers to combination of an element or a substance with oxygen. What is oxidation? Oxidation refers to what? Combination of an element. The element हम लोग combine करेंगे. These are the combination of an element or a substance. Combination of an element or a substance with oxygen. अगर हमारा कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन हो रहा है, अगर हमारा कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन हो रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन बोलोगे. फॉर एग्जांपल कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो कार्बन इज अ एलिमेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन. मतलब कार्बन इज अ एलिमेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन, and because carbon combined with oxygen, it is called as what? Oxidation of carbon. Magnesium combined with oxygen. Magnesium is the element. Either you can say element or oxygen. When they combine with oxygen, it is called as which reaction? Oxidation. So magnesium is the element combined with oxygen. तो हमें क्या मिलेगा? MgO, magnesium oxide. MgO is called as magnesium oxide. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? Oxidation of magnesium हुआ, तो this is called as a oxidation of magnesium. Oxidation of magnesium. So कार्बन में ऑक्सीजन ऐड करोगे तो क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन. मैग्नीशियम में अगर ऑक्सीजन ऐड करोगे तो क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम. तो ये ऑक्सीडेशन का एक मीनिंग है. तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? Combination of an element or a substance with oxygen is called as the oxidation. अभी यहाँ पे बैलेंस करेंगे. O2 है, यहाँ पे O1 है, तो यहाँ पे O2 करो 2 mg, तो यहाँ पे भी क्या चला जाएगा? 2 mg चला जाएगा. करेक्ट. देन सेकेंड मीनिंग of oxidation, that is removal of hydrogen. Removal of hydrogen is called oxidation. Removal of hydrogen, अगर हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो removal of hydrogen is also called as oxidation. Removal of hydrogen is also called as what? Oxidation. यहाँ पे एक एग्जांपल देखो. फॉर एग्जांपल we are having H2S with oxygen.
हमारा हेडिंग क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें हाइड्रोजन रिमूव करना है। अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सल्फर। H2S है, H2S is called as what? H2S is called as the hydrogen sulfide, और हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, सल्फर बचेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद क्या बचेगा, सल्फर, और H और वो कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, H2। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, H2S से H रिमूव कर दिया, H2S से H को रिमूव कर दिया, तो H को रिमूव करने के बाद क्या बचा, फिर यहाँ पे ओनली सल्फर बचा, एंड H and O combine with each other to gives you what, H2। So removal of hydrogen is also called as what, oxidation। Removal of hydrogen is also called as the oxidation। अब इनको बैलेंस करो इक्वेशन, यहाँ पे O2 है, यहाँ O2 है, तो यहाँ पे O2 करो, O2 हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 करो, और 2 सल्फर, तो यहाँ पे आएगा 2 सल्फर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 सल्फर। ये हमारे इक्वेशन बैलेंस हो। तो हमने यहाँ पे दो ही मीनिंग देखे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। ओके, तो दो ही मीनिंग हम भी करेंगे। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। अभी हम लोग मीनिंग देखेंगे रिडक्शन का, मीनिंग ऑफ रिडक्शन। These are the meaning. There are many more meaning, but हम लोग दो ही meaning देख रहे हैं, reduction। Reduction means what? Again, first one, removal of oxygen। यहाँ पे रिडक्शन में हम लोग ऑक्सीजन क्या करें, रिमूव करें। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, का ऑक्सीजन अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल, द फर्स्ट एग्जांपल आई कैन से, द फर्स्ट एग्जांपल इज Fe2O3 कार्बन। अभी यहाँ पे देखो, रिमूवल ऑफ, हमें क्या रिमूव करना है, ऑक्सीजन रिमूव करना है। तो यहाँ से अगर मैंने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, यहाँ से मैंने अगर ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, तो क्या बचेगा, Fe। क्या बचेगा, Fe, and that O will combine with carbon, and O will combine with carbon to give you what, carbon dioxide। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, Fe2O3 था, यहाँ पे हमारे पास Fe2O3 था, यहाँ से मैंने Fe को रिमूव कर दिया। Fe को रिमूव करने के बाद, सॉरी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, तो ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद क्या बचा, यहाँ पे Fe बचा, Fe प्लस CO। बैलेंस करो इक्वेशन को, हाउ मेनी Fe वी आर हैविंग हियर, O बैलेंस करो, यहाँ पे O3 है और यहाँ पे O2 है, इधर मल्टीप्लाई करो 3 से, इधर मल्टीप्लाई करो 2 से, तो O कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पे भी O कितना चला जाएगा, 3 2 जा 6, और बाद में Fe 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4। कार्बन कितना आ रहा है, 3 कार्बन, तो यहाँ पे लिखो 3 कार्बन। एक एग्जांपल हुआ। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is called reduction। Removal of oxygen is called as a reduction। और एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, HgO, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव करना है, तो ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद क्या मिलेगा, Hg मिलेगा, एंड ऑक्सीजन रिमूव करोगे तो ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, Hg बचेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था। तो बैलेंस करो इक्वेशन को, O2 O1 है, तो यहाँ पे 2 हुआ, 2Hg 2Hg। So what is reduction? Removal of oxygen. Removal of oxygen is called as a reduction। Okay, इसका और सेकंड और एक मीनिंग देखो, addition
of हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर ऐड करेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या आएगा CH2, ये हमारा ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, CH2, दिस इज इथीन। अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया, इथीन में अगर क्या ऐड करोगे, हाइड्रोजन ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, इथेन, CH3CH, so addition of hydrogen, so addition of hydrogen is called as a reduction. So we have just seen a simple and see meaning of what is meaning of oxidation and what is meaning of reduction. What is oxidation? Addition of oxygen and removal of hydrogen is called as oxidation. And what is reduction? Ulta, removal of oxygen and addition of hydrogen is called as a reduction. So actually the many more concepts are there, लेकिन ये उसमें से दो concept है, correct? Now we'll go for the main next heading. Next heading, that is define oxidation and reduction on the basis of electron define oxidation and reduction on the basis of electron transfer process. मतलब अभी हमें डिफाइन करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बट अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब क्या, वो हमें देखना है। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मीनिंग कैसे होता है, क्या मीनिंग होगा? फर्स्ट विल से oxidation. What is oxidation here? It is defined as loss of one or more electrons, loss of one or more electron from a substance, loss of one or more electron from a substance. Okay, it is defined as loss of one or more electron. मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम लॉस करेंगे, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही डेफिनेशन को अभी आगे चल के यूज करेंगे। ऑफकोर्स क्लासिकल कंसेप्ट भी हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, राइट? अभी एग्जांपल देखो कि हमारा सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, +1, और ये हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करके, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 28। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। एटॉमिक नंबर 11 मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 281। 281, यहाँ से उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 28। ऑक्टेट कंप्लीट है, 28 मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए चार्ज क्या आ गया, +1 और इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। दूसरा एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम
का एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 282। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 282, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या आएगा 28 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 आ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा +1, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसलिए यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा +2। ये हमारे ऑक्सीडेशन है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए 1, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए 2, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और यहाँ पे एक बात ऑक्सीडेशन में और एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको। ऑक्सीडेशन यहाँ पे और एक मीनिंग होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर of a substance by loss of electron is called oxidation। देखो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सब्सटेंस। इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कैसे, यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ पे चार्ज 0 है, और यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है +1। तो कोई भी एलिमेंट का अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। कोई भी एलिमेंट का चार्ज अगर इंक्रीज हुआ तो उसे भी आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन बोलोगे। तो यहाँ पे Mg का चार्ज कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यहाँ पे Mg का चार्ज कितना आ रहा है +2 आ रहा है। तो कोई भी एलिमेंट का अगर चार्ज इंक्रीज हुआ, कोई भी एलिमेंट का चार्ज अगर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीजिंग चार्ज इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। इंक्रीजिंग चार्ज इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन, करेक्ट। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या देखा हम लोगों ने कि मतलब ये तो मीनिंग देखा ही कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। दूसरा और क्या देखा कि अगर कोई भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अगर चार्ज बढ़ रहा है, कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अगर चार्ज बढ़ रहा है तो चार्ज यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +1 है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे चार्ज 0 था, यहाँ पे चार्ज +2 है, ऑक्सीडेशन। तो इंक्रीज इन ये ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे कितना नंबर है +1, यहाँ पे कितना नंबर है +2। तो अगर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सब्सटेंस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन का मीनिंग हुआ। नाउ विल सी द मीनिंग ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन, it is defined as gain of one or more electrons by substance। मतलब यहाँ पे उल्टा है कि यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय सब्सटेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सब्सटेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो इट इज व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज व्हाट इज डिफाइंड एज गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय द सब्सटेंस। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो रिडक्शन। तो एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287।
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक 287। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए चार्ज क्या आएगा Cl माइनस, और कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा हमारा 288। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा हमारा 288। एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बना Cl माइनस, और हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 288। दूसरा एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या लिखना है E माइनस, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या लिखना है E माइनस। दूसरा एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा O, और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए चार्ज क्या आएगा O2 माइनस, O2 माइनस, और यहाँ पे आएगा 28, क्या आएगा 28। So what is reduction? It is defined as a gain of one or more electron by a substance called as reduction. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए चार्ज क्या आएगा Cl माइनस, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए चार्ज क्या आ जाएगा O2 माइनस। एंड व्हाट इज द नोट हियर, यहाँ पे भी एक नोट है दैट डिक्रीज इन oxidation number of a substance by gain of electron is called reduction, is called a reduction, correct? Decrease in oxidation number of a substance by gain of electron is called as a reduction. मतलब देखो डिक्रीज मतलब कैसे है कि देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1, तो कभी कभी आपको इलेक्ट्रॉन से समझ में आया नहीं आया, लेकिन यहाँ पे चार्ज देखो, यहाँ पे चार्ज 0 है और यहाँ पे चार्ज -1 है, तो चार्ज अगर डिक्रीज होगा मतलब रिएक्शन कौन सा रहेगा, रिडक्शन रहेगा। दूसरा यहाँ पे चार्ज 0 है और यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, 0 से -2 हो रहा है। तो अगर हमारा चार्ज 0 से -2 मतलब चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो ये यहाँ पे चार्ज है 0, यहाँ पे है -1, यहाँ पे चार्ज है 0 और यहाँ पे चार्ज है -2। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब अगर हमारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट, रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखा क्या देखा, अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन, और अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। यहाँ पे भी हम 2 मीनिंग देखे कि अगर सब्सटेंस हमारा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सब्सटेंस हमारा इलेक्ट्रॉन लूज मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लिखोगे, राइट साइड में लिखोगे, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। सब्सटेंस अगर हमारा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लिखोगे, लेफ्ट साइड में लिखोगे, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या लिखोगे, ई माइनस। अगर हमारा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसे क्या लिखोगे आप, रिडक्शन, क्या लिखोगे आप, रिडक्शन। दूसरा, अगर हमारे एलिमेंट का चार्ज बढ़ रहा है, अगर हमारे एलिमेंट का चार्ज बढ़ रहा है तो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और अगर हमारे एलिमेंट का चार्ज डिक्रीज हो रहा है, अगर हमारे एलिमेंट का चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो इट इज क्या बोलोगे आप, रिडक्शन। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंसेप्ट हो गए। नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग।
redox reaction in terms of electron transfer. Redox reaction in terms of electron, what is redox? यही हमें देखना है कि what is meaning of redox reaction, जबकि हमारे चैप्टर का नाम ही है redox reaction, तो अभी हमें क्या देखना है, what is the meaning of redox reaction. Now what is redox reaction? A reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously is called redox reaction. Okay, the जिस reaction में oxidation and reduction will occur simultaneously. The reaction में oxidation भी होगा, reaction में reduction भी होगा, और जिस reaction में oxidation and reduction simultaneously होगा उसे हमें क्या बोलना है, redox reaction. उसे हमें क्या बोलना है, redox reaction. तो जिस reaction में oxidation and reduction simultaneously होगा उससे हमें क्या बोलना है, redox reaction. मतलब एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल है, Zn copper 2 plus Zn copper, ये हमारा रिएक्शन, करेक्ट. Zn copper 2 plus Zn2 plus and copper. ओके, तो अभी हमें देखना है ये हमारा redox ये जो हमें एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल किसका है, ये हमारा एग्जांपल redox रिएक्शन का है. तो अभी हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिएक्शन रिडक्शन, कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन है. तो ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा, तो मैंने बोला ऑक्सीडेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ऑक्सीडेशन आइडेंटिफाई करोगे दो तरह से ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन. ओके, अगर लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, तो दूसरा क्या करोगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. अगर हमारे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन करोगे. देखो यहाँ पे Zn का चार्ज यहाँ पे 0 है और Zn का चार्ज यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे Zn 0 और यहाँ पे Zn +2, Zn का चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन. रिएक्शन Zn gives you Zn2 plus, ये ऑक्सीडेशन हुआ, बस यहाँ पे चार्ज आ रहा है 0 और यहाँ पे चार्ज आ रहा है +2, तो चार्ज ऑफ द एलिमेंट इज इंक्रीजिंग, और जब एलिमेंट का चार्ज इंक्रीज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहा हूँ, RXN रिएक्शन. अभी रिडक्शन देखो, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिडक्शन का मतलब क्या, मैंने बोला रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन का मतलब क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन रिडक्शन का मीनिंग क्या था, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा. तो डिक्रीज होगा तो कैसे आएगा, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस है, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस है और यहाँ पे कॉपर 0 है, कॉपर +2 से 0 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, कॉपर 2 प्लस
से कॉपर 0 हो रहा है, ये रिडक्शन, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि एलिमेंट का चार्ज अगर इंक्रीज होगा, एलिमेंट का चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो उसे क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन बोलोगे, और एलिमेंट का चार्ज अगर डिक्रीज हो जाएगा तो उसे क्या बोलोगे, रिडक्शन। अभी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखने, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में, देखो ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लिखते हैं, राइट साइड, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट साइड। इतना तो हमें मालूम है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, राइट साइड में, राइट साइड ऑफ द एरो, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, राइट साइड ऑफ द एरो, और ये हमारा रिडक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, करेक्ट। अभी इनको बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे लिखना है, राइट साइड ऑफ द एरो लिखना है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे लिखना है, राइट साइड ऑफ द एरो लिखना है। और रिडक्शन में क्या है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कहाँ पे लिखना है, लेफ्ट साइड ऑफ द एरो लिखना है। अभी बैलेंस करो, बैलेंस कैसे करते हैं, देखो इनको, देखो यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं मतलब 0 है, यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं मतलब 0 है, एनी के ऊपर चार्ज 0 है, तो यहाँ पे देखो +1 एंड -1, यहाँ पे भी 0 है, मतलब लेफ्ट साइड में अगर हमारा चार्ज 0 है तो राइट साइड में भी चार्ज हमारा 0 है, बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखो mg, mg के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है, mg के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं, मतलब चार्ज क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, और यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2, +2 एंड -2, तो यहाँ पे भी कितना 0 आ रहा है, तो दोनों साइड में यहाँ पे भी 0 चार्ज आ रहा है और यहाँ पे भी 0 चार्ज आ रहा है, करेक्ट। mg 0 और यहाँ पे +2 एंड -2 इज 0, करेक्ट। अभी यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, -1, राइट साइड में चार्ज कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, और यहाँ पे देखो 0 + -1, 0 एंड -1, तो -1 आ रहा है, तो राइट साइड में भी चार्ज आ रहा है -1 और यहाँ पे भी चार्ज आ रहा है -1। यहाँ पे देखो राइट साइड में चार्ज कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, तो यहाँ पे चार्ज तो 0 है, लेकिन यहाँ पे चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आ जाएगा, -2, तो राइट साइड में भी -2 है, लेफ्ट साइड में भी -2 है, राइट साइड में -2 एंड लेफ्ट साइड में -2, मतलब इलेक्ट्रॉन भी हमेशा बैलेंस। तो अभी यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा राइट साइड में, तो राइट साइड में लिखा। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लिखोगे, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में लिखा। अभी बैलेंस करो, यहाँ पे चार्ज कितना है, कुछ भी नहीं मतलब 0 है, तो लेफ्ट साइड में चार्ज अगर 0 रहेगा, लेफ्ट साइड में चार्ज अगर 0 रहेगा तो राइट साइड में भी कितना 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -2। देखो +2, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आएगा, -1, तो दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आएगा, -2, -2 एंड +2 इज व्हाट, 0, -2 एंड +2 इज व्हाट, 0। रिडक्शन, रिडक्शन में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी ये साइड में देखो, इलेक्ट्रॉन के कॉपर के ऊपर चार्ज कितना 0 आ रहा है, यहाँ पे कॉपर के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, +2, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं -2। -2 कैसे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा -1, तो दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आएगा, -2, +2 एंड -2 इज व्हाट, ये हमारे रिएक्शन हो गए, करेक्ट। तो ये रिएक्शन के अंदर Zn gives you Zn+2, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए ये हमारा रिएक्शन कौन सा रहेगा, रिडॉक्स रहेगा। ये हमारा रिएक्शन कौन सा रहेगा, रिडॉक्स रहेगा। रिडॉक्स का मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, ये हमारे रिडॉक्स का कंसेप्ट का मतलब, यहाँ पे Zn इज बिकमिंग Zn+2 इज ऑक्सीडेशन एंड कॉपर 2+ इज बिकमिंग कॉपर इज अ रिडक्शन। तो दोनों को ऐड करो, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा ये इक्वेशंस को, तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है एरो के बाद, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है एरो के पहले, तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे,
ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस जो एरो के बाद है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एरो के पहले, तो यहाँ पे क्या बचेगा, Zn Cu2 plus gives you कॉपर। ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमारा कौन सा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग हुआ। अभी हमें एक दो टर्म्स के मीनिंग देखने हैं। मीनिंग दैट इज यस। अभी हम मीनिंग किसका देख रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट का मीनिंग देख रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो व्हाट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ substance which itself undergo reduction and causes oxidation of another species। तो देखो, what is oxidizing agent, what is oxidizing agent, a substance which itself undergo, मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है, खुद का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे का वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। a substance which itself undergo reduction, मतलब खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। okay, खुद का रिडक्शन हो, इतना भी ध्यान में रखोगे तो चलेगा। substance which itself undergo reduction are called as the oxidizing agent। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा उसे क्या बोलना है हमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलना है। और दूसरा फिर बाद में मैं एग्जांपल लेता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट से ही क्या बोलना है हमें, रिडक्टेंट बोलना है। रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। व्हाट इज रिड्यूसिंग ए रिडक्टेंट हियर, अ सब्सटेंस which itself undergoes oxidation, and causes reduction of another species। देखो, सिंपल एक बात ध्यान में रखना, जिस सब्सटेंस का होगा रिडक्शन, जब सब्सटेंस का होगा रिडक्शन तो उसे क्या बोलना है, उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। और जिस सब्सटेंस का होगा ऑक्सीडेशन, सब्सटेंस विच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिसका होगा ऑक्सीडेशन उसे क्या बोलना है, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। सिंपल ध्यान में रखना, जिसका हो रहा है रिडक्शन, जो सब्सटेंस undergoing reduction is called as a oxidizing agent or oxidant, and substance itself undergoes oxidation are called as reducing agent or reductant। Substance itself undergoes oxidation are called as reducing agent or reductant। okay, एग्जाम्पल देता हूं मैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो यही एग्जाम्पल देखो, Zn gives you Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन,
ये हमारा कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन। तो अभी मैंने क्या बोला कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? Zn। तो जिसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वो क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। तो इन दिस रिएक्शन जिंक इज व्हाट? रिड्यूसिंग। यहाँ पे क्या होगा? जिंक मतलब जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। और यहाँ पे कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर 2 प्लस का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कॉपर 2 प्लस का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होगा वो क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? कॉपर 2 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर 2 प्लस इज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कैसे ध्यान में रखना? जिसका, और ये Zn है, Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रहेगा कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। देखो Zn का चार्ज बढ़ रहा है, Zn इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब Zn इज अंडरगोइंग व्हिच रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। तो आप इतना ध्यान, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब रिडक्शन। कॉपर 2 प्लस का चार्ज डिक्रीज हो रहा है मतलब रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होगा वो रहेगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट। तो सिंपल ध्यान में रखना, जो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहेगा वहां का सब्सटेंस क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। और जहाँ का सब्सटेंस रिएक्शन रिडक्शन रहेगा वहां का सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। ओके, एक मिनट। और दूसरा एक एग्जांपल, अगर मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे gives you Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो Mg का चार्ज बढ़ रहा है, +2 हो रहा है, मतलब Mg इज अंडरगोइंग व्हिच रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। Mg इज अंडरगोइंग व्हिच रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। तो Mg का चार्ज बढ़ रहा है, Mg 0 से क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। Mg इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, हमारा कौन सा रिएक्शन रहा? ऑक्सीडेशन रहा। तो Mg इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा O2 माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होगा वो क्या आएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन इज, सॉरी, रिडक्शन हो रहा है मतलब कौन सा रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो जिसका रिडक्शन होगा वो कौन सा एजेंट रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप सिंपल ध्यान में रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, यस। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, रिमेनिंग पार्ट विल ड्यू टू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर।
ध्यान में रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपोजिट ध्यान में रखना, अपोजिट। ओके, विल स्टॉप। थैंक यू।